So hello everyone, let's come to the next session of word problems in classes. So in class 10, chapter 3 and 4, that is the linear equations in two variables and quadratic equations. And today we will be discussing about the word problems based on the concept of speed, time and distance. Right? So let's talk about these STD problems in detail. तो इनमें से सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन विद यू. हम सबको पता है देयर इज वेरी कॉमन फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सबसे ज़्यादा कॉमन और जो सबको ज़्यादा याद रहता है ये फॉर्मूला. कोई भी आपको दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है रिलेशन, अगर डिस्टेंस के लिए यूज़ करना पड़ता है या टाइम के लिए यूज़ करना पड़ता है तो आप इसी में से यूज़ कर सकते हो. So first question I'm taking from is from the textbook. It's from chapter 4. The question is, a train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. So distance to be traveled by the train is 480 kilometer. Right? It is at a uniform speed. So let's consider that that uniform speed of train is x kilometer per hour. Right? And then it is given if the speed had been 8 kilometer less. If speed is how much? 8 kilometers per hour less. So that is less than, as less 8 from this is that as x minus 8. है ना, 8 less from x, तो x minus 8 हो गया. और then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. The comparison is, if let me say this was time for uniform speed, this is the time for let me say new speed, then when the speed is less, obviously the time is more. The question is the new time, right, is original time plus 3. It would have taken 3 hours more. Or you could have written it like this: time new, time at uniform speed is equal to 3. Or you could have written it as original, whatever you want to write. ठीक है ना. तो इसका मतलब जो नया वाला टाइम, जो नई स्पीड इंक्रीज करके, अब यहाँ पे रिलेशन किसका लगेगा? टाइम का. यहाँ से टाइम का रिलेशन निकालो आप लोग. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम फ्रॉम हियर? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या हुआ? ऑल्टरनेटो इंटरचेंज हो गए टाइम और स्पीड, है ना. स्पीड इधर आ गई, डिस्टेंस हमें दे रखा गया है, स्पीड हमें दिया गया हुआ है. ठीक है, रिलेशन हमने यूज करना है. सो इट विल बी 480 अपॉन एक्स माइनस, सॉरी, 8. ठीक है, माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. ऑल ऑफ यू प्लीज सिंप्लीफाई इट. क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है. जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? ये 480x माइनस ये 480 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 480x, and minus or minus will be what? Plus, and then it will become 0 here, and it will be 8 8 is 64, 6 32 and 6 then 8 4 36, but 8 4 is 32 and 6 is 38, whole divided by x minus 8 into x, and this is equal to what? 3. So on the right hand side we have got 3. So this will get eliminated. आगे आप simplify कर लो. This will be 3840 is equal to x into x, x square into 3 is 3x square minus 8 3 is 24x. Cross multiply, take it to the right hand side. 3x square minus 24x, then it will be minus 3840 equal to 0. इसको लेफ्ट से राइट पे लेके जाओगे नेगेटिव हो जाएगा. 3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 टेकन आउट, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2 24 8 and 0. दिस इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280. कौन सा इक्वेशन बन गया हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो क्वाड्रेटिक मेथड हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी. वी नो इट. इट्स योर चॉइस व्हाट एवर मेथड यू वांट टू अप्लाई. अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करना चाहते हो,
So product of first and third term, that is x square minus 8x minus 1280 equal to 0. ये है ना, product of first and third term is what? Negative. So middle term is what? The difference of two numbers. 8 डिफरेंस चाहिए और प्रोडक्ट 1200 के आसपास है. So 1200 के आसपास सबसे ज़्यादा सूटेबल नंबर कौन से रहते हैं? 30 40 है ना. लेकिन इनमें गैप कितना है? 10 का. तो मैं अगर इसको बढ़ा के 32 कर देता हूँ और 40 ले लेता हूँ तो फैक्टराइजेशन हो जाती है. नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो, वॉट एवर यू वांट टू अप्लाई. तो माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0. इससे x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, x माइनस 40 इक्वल टू 0. x प्लस 32 और x माइनस 40. राइट. अब क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? Oh, I have written 4 only. It is 40. Please write 40. So this will give you two answers, x equals to minus 32 or plus 40. Since we know that x is what? The speed. Speed can never be negative. So negative is rejected. So x is 40 kilometers per hour. अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन था कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था? 480 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40. ठीक है. 40 की स्पीड में कितना बनता है? 12 आवर्स लगते हैं. कहता है अगर इसकी स्पीड 8 आवर्स लेस हो जाती, अब स्पीड कितनी हो गई? 32. और ये कितना है? 480. राइट. सिंप्लीफाई कर लो. 16 के टेबल से बड़े आराम से जा रहा है. 16 3 30 और ये इधर से कहते कितना हो गए? 15 आवर्स. पहले कितना टाइम लग रहा था? लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 घंटे. अब कितना टाइम लग रहा है? 15 घंटे. तो कितना टाइम बढ़ गया? 3 घंटे. और यही क्वेश्चन था हमारा कि 3 आवर्स टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दिस इज डन. राइट. सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज प्रीटी एन इंटरेस्टिंग वन. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट भी बनेगा आपका करने का इसको. दिस अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. इस क्वेश्चन में क्या है जो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे? दो कारें हैं. एक केस में वो एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं और दूसरी स्पीड में वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं. ठीक है. क्वेश्चन है हमारे पास A एंड B दो पॉइंट्स है विच आर 100 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. राइट. सो ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है. राइट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर्स. राइट. दो कारें चलती हैं. केस 1 कहता है, ठीक है, दो कारें हमारे पास चल रही हैं. ये कार नंबर 1 होगी ब्लू कार. राइट. BMW आपकी जो भी है मान लो. और दूसरी कार आपके पास ये होगी रेड कार. फेरारी इज मोस्ट सुटेबल है ना नाम इसके लिए. तो ये होगी दूसरी कार. कहता है अगर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं. राइट. चल पड़ी. तो ये दोनों एक डायरेक्शन में चल के कहीं एक पॉइंट पे मिलती हैं जाके सी पे. जो सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आके दोनों कारें मिलेंगी. कितने घंटों के बाद? आफ्टर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ऑब्वियसली दे मीट इन 5 आवर्स. वो ऑब्वियस था, वो तभी मिलेंगी अगर वो डिफरेंट स्पीड पे होंगी. सेम स्पीड पे होंगी तो उनका डिस्टेंस बरकरार रहेगा. तो इसका मतलब ये है कि 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद आफ्टर 5 आवर्स सी पे पहुंचती हैं वो. और यहाँ पे दोनों कारें जो हैं आपकी, ठीक है, वो बराबरी भी आ जाती हैं. डिजाइन थोड़ा बदल गया कार का, आप ठीक कर लेना इसको. राइट. तो दोनों कारें. इसमें आप अगर नोटिस करके देखोगे तो जो कार ये ब्लू वाली कार है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? AC है ना, A से लेके C. और ये जो रेड वाली कार है, इसने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस? BC, B से लेकर C तक. तो कंपैरिजन क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये ब्लू कार ने ज्यादा किया. तो इसका मतलब AB, और यू राइट द बिगर वन, AC माइनस BC इज इक्वल टू AC. ये डिस्टेंस आया ना, सॉरी AB. AC माइनस BC इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू व्हाट?
100। अब मैं ये मान लेता हूं कि स्पीड ऑफ ब्लू कार, ठीक है ना, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम दिस ए इज, you please don't write this blue and red because you will be using only blue pen. तो speed of car from A x kilometer per hour and speed of car from B y kilometer per hour. टाइम कितना लिया इसने? 5 hours. इसने भी टाइम कितना लिया? 5 hour. अब 5 टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है STD, टाइम इज गिवन, स्पीड इज गिवन, तो कौन मिल जाएगा? डिस्टेंस। याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको, क्या होता है डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस बाय ब्लू कार फ्रॉम ए विल बी 5x, ठीक है, और ये डिस्टेंस है AC। एंड सिमिलरली डिस्टेंस बाय कार फ्रॉम B विल बी 5y, और ये डिस्टेंस था हमारे पास, कौन सा वाला डिस्टेंस था ये हमारे पास? दिस वॉज डिस्टेंस BC, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC की जगह क्या आया हमारे पास? 5x, BC की जगह पे क्या आया? -5y इक्वल टू 100, 5 कॉमन निकाल लो, x - y इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x - y इक्वल टू 100/5 इज 20। पहली कंडीशन आ गई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये फर्स्ट केस पढ़ना हमारे पास इस क्वेश्चन का। क्या कहता था? एक कार A से स्टार्ट होगी, दूसरी कार B से स्टार्ट होगी, 5 घंटे के बाद दोनों कारें मिलेंगी। इसका मतलब A वाली कार चलने वाली ज़्यादा तेज कार है और B से चलने वाली कार थोड़ी कम स्पीड वाली कार है, राइट। तो हमसे यहाँ से क्या मिला हमें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार दिस ब्लू कार इज 100 किलोमीटर्स मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेड कार। क्यों 100? क्योंकि दोनों के बीच का गैप 100 किलोमीटर्स था। फॉर्मूला क्या लगा? स्पीड अज्यूम कर ली इसकी x और इसकी y। तो 5 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 5x। इसने कितना ट्रेवल कर लिया? 5y। डिफरेंस कितना है? 5x - 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है। 5 वहाँ से कॉमन निकाला और इसको हमने कैंसिल कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास रेडी होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन। सेकेंड केस क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें? अब ये दोनों कारें, राइट, अब ये फिगर हमारे काम का नहीं है। अब ये दोनों कारें जो हैं दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। बोथ दिस कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ए वाली कार, ब्लू कार जो थी हमारे पास, ठीक है, और ये बी से चली कार, रेड वाली कार थी जो हमारे पास, राइट। नाउ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। लेट मी से दे मीट समवेयर हियर इन द पॉइंट डी, समवेयर हियर एट द पॉइंट डी। तो ब्लू वाली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तब तक? AD। इसने कितना किया? BD। अब हमें पता है इस केस में, केस 2 जो बनता है हमारे पास, इसमें AD प्लस BD टोटल डिस्टेंस 100 है। यही है ना, 100 दे रखा हमें दिस होल डिस्टेंस, राइट। अब ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, हमें स्पीड पता थी। ब्लू कार की स्पीड कितनी ले रखी थी हमने? x। स्पीड तो वही चल रही है। और इसकी रेड वाले की कितनी थी? y। और टाइम, कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलते हैं, वो इस क्वेश्चन में दे रखा है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, ठीक है। इस केस में टाइम कितना है हमारे पास? टाइम इज 1 hour, ठीक है। तो ए कार की जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 1 × x इज इक्वल टू x, और कार बी का जो डिस्टेंस आएगा हमारे पास दैट विल बी 1 × y इक्वल टू y। टोटल यहाँ पुट कर दो तो x + y इज इक्वल टू 100। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। सो 2 इक्वेशंस बन गई। वी हैव गॉट इक्वेशन x - y equal to 20 as the first. We have got equation x + y equal to 100 as the second. अब इन दोनों को क्या करोगे? Solve. I hope all of you can solve it. x - y equal to 20, x + y is equal to 100. ये आप लोगों के लिए होमवर्क रह गया। इसको आप कंप्लीट करोगे। y कैंसिल होकर बाय हो जाएंगे। 2x - 20, x equal to 60 हो जाएगा, राइट। और y कितना हो जाएगा हमारे पास?
40, this will be the answer. आप पेपर वापस इसको वेरीफाई करते रहिएगा. Right, you can verify the question also if you want to know about this question number. So this is actually fourth part. ठीक है, it's a fourth part on page number 63. Page 63, fourth part from NCERT book only. Right. Now let's have another interesting question, and this question I have taken from the optional exercise. This is really a good one. आप लोगों ने ऐसे देखा होगा ये क्वेश्चन भी थोड़ा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट था. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ा मजेदार भी है. These are less like questions, more like riddles. Right, sir? So this question I'm going to talk to you right now is question number 3 of optional exercise of the textbook, chapter 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. Right? So what is given to us is the uniform speed of the train, that a train covered certain distance at uniform speed. Right? So the train covered I hope it is all right. Yes, there was some problem with the recording. A train covered a certain distance at a uniform speed. So let uniform speed of train. So let uniform speed of train is equal to x. Right? If the train would have been 10 kilometers faster, it would have taken 2 hours less. Okay? And if the train would have been slower by 10, it would have taken 3 hours more than the time allotted. Find the distance covered by the train. इसमें दो ही चीज़ों के बीच का रिलेशन दे रखा है. एक स्पीड दे रखी है हमें और दूसरा टाइम की बात की है उसने कि टाइम ज़्यादा होगा या कम होगा. डिस्टेंस नहीं दिया गया है, बोला गया है इट्स अ स्पेसिफिक डिस्टेंस. दो ऑप्शंस हैं, या आप डिस्टेंस अज्यूम कर लो, नहीं तो बेस्ट तरीका है आप स्पीड और टाइम अज्यूम कर लो और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यही होता है ना बस. तो केस 1 लेट ओरिजिनल टाइम ले लो आप. लेट ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू y hours. Speed of train is this kilometer per hour. Now case 1, right? So case 1 में when you talk about is, तो case 1 will be if 10 kilometer faster. ठीक है, speed increases by 10. ठीक है, if speed is x plus 10 and then the time would be, right, in that case speed would be 10 kilometers more, the time would be 2 hours less, y minus 2. डिस्टेंस उतना ही रह रहा है. ठीक है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा. ओरिजिनल में जब आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया यहां पर, this is speed into time, this is distance. So here, so distance will be, distance is equal to xy. This implies here again you apply the formula speed into time, x plus 10 into y minus 2 equals to xy. एक्सप्लेन करके सॉल्व कर लीजिए. दिस इज एक्स बाय माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स बाय क्या हो जाएगा? कैंसिल. ठीक है, सो दिस विल गिव यू माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20. 2 कॉमन ले लो, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन. राइट, व्हाट इज केस 2? केस 2 कहता है if speed would have been reduced by 10 kilometers, then the time taken would have been 3 hours more than the original time. Original y है तो more हो जाएगा y plus 3. So again according to question, distance क्या? speed into time. distance तो उतना ही है ना, distance तो कम नहीं हो रहा, right?
तो क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई. सिंप्लीफाई कर लो. एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसल. ठीक है, दिस इज 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. So you have got a linear pair of equations, right? So you will be simplifying these two linear pairs of equations to get the answers, and I expect you people to solve this pair of linear equations. You can do it, but still if you want the hint of the answer is, so it will be x is equal to 50 and y equals to 12. And the question was what? Find the distance. Distance was speed into time. The original, so distance would have been 600 kilometers. Right? So this was the original speed and this was the original time to be taken by the train to reach destination. Right sir? इसको आगे सॉल्व आप लोग खुद करोगे, इससे आपका भी कंट्रीब्यूशन आएगा, और कोई डाउट होगा यू कैन आस्क. राइट, सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा एक यूनिट का कन्वर्जन है. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग इज द टाइम दैट इज देयर इज इन मिनट्स, whereas speed and distance are in kilometers an hour. Right? So sorry, speed and distance are in kilometer per hour and kilometer. So यहाँ पे आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आज में. A train traveling at a uniform speed. So this is another question I have taken from exercise 4.4 of the textbook. Traveling at a uniform speed for 360. So distance is given to us 360 kilometers. Right? Would have taken 48 minutes less to travel the same if the speed were 5 kilometers more. Let speed is equal to x. ठीक है? So if speed is increased by 5, so it becomes x plus 5 kilometers per hour. And this is kilometers. Now case 1. बात टाइम की हो रही है. जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ज़्यादा टाइम कौन सा होगा? 360 अपॉन कम वाली स्पीड. और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. तो ये कितना बनेगा टाइम? 360 अपॉन एक्स प्लस 5. इस पे ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. और कितना टाइम ज़्यादा लगेगा? ठीक है, इस केस में जब स्पीड कम थी तो ये जो था, दिस वाज टेकिंग 48 मिनट्स मोर. 48 मिनट्स, दिस इज इन आवर्स. दोस 48 मिनट्स, बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है. सो 48 मिनट को यू हैव टू राइट 48 upon 60 hour. So plus 48 upon 60. That's it. The rest you can do. It's a very simple equation. It is exactly like the first question we did in the introduction of this session. Okay friends, so that's all about from speed, time and distance. Right, so next lecture will be on some miscellaneous questions. Thank you so much.